Today topic is about retinoscopic cross and neutralization. This topic is based on the practical knowledge. In this topic, let's see how to neutralization and how to find the moment and the cross and how to plot the power on the cross. Let's go through the next slide. So, what is neutralization state? Neutralization state is defined as the state achieved when the focal point of emerging light lies at the pupil of the retinoscope. At this point, movement of reflex is not seen and it is called the neutral point or neutralization state. There is three types of the movement. One is neutral movement or no movement, another is with movement and against movement. This is neutralization state and this is with movement and this is against movement. ये हमारा रेटिनोस्कोपिक स्ट्रिक है और ये जो डार्क सी रेड रिफ्लेक्स है वो हमारा पिपिलरी रिफ्लेक्स है जो कि रेटिना से जब भी आती है। और फिर जब स्टिक रिफ्लेक्स एंड पिपिलरी रिफ्लेक्स साथ में मूव हो सेम डायरेक्शन तो ये हमारा विथ मूवमेंट हो। इफ़ ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट हो तो ये हमारा क्या है, अगेंस्ट मूवमेंट है। सो विथ मूवमेंट सीन इन ametropy and hypermetropy because emerging light rays are not converging to the focal point, and against movement is seen in myopic patient because emerging light rays are converging to the focal point and diverging. In with movement, neutralize the movement with plus lens in both meridian, that is vertical and horizontal meridian. In against movement, neutralize with the movement with minus lens in both meridian. Neutralization method. There is three methods to neutralize. One is from spherical lens and another is with spherical and cylindrical lens. Another is with cylindrical lens only. In spherical lens, in this method, use plus minus spherical lens for both meridian after finding the movement. In this method, accommodation is not relaxed. So to relax the accommodation, give the distance target to the patient. मतलब पैसेंट का स्ट्रेट फॉरवर्ड टारगेट देना है एकोमोडेशन रिलैक्स करने के लिए। और स्पेरिकल सिलिंड्रिकल लेंस में क्या होता है, इसमें एकोमोडेशन रिलैक्स करने के लिए हमें बोथ आइज में ट्रायल फ्रेम में 1.5 या 2 डाप्टर यूज करके एकोमोडेशन रिलैक्स करके न्यूट्रलाइजेशन हम कर सकते हैं। और जब फाइंडिंग पावर करने के लिए या रिफ्रैक्शन 1.5 को निकाल कर और जितना रिमेनिंग पावर है वो हमारा रिफ्रैक्शन नंबर होता है। इसलिए यहाँ पर वर्किंग डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट नहीं होता और ये मेथड में वर्किंग डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट होता है। और न्यूट्रलाइजेशन विथ सिलिंड्रिकल लेंस, ये मेथड में बोथ मेरिडियन के लिए हमें सिलिंड्रिकली पावर चाहिए। सबसे इजी मेथड स्पेरिकल लेंस से, ताकि आपको डायरेक्ट वर्किंग डिस्टेंस डिडक्ट करके आपको इजीली फाइंड आउट हो। सो वर्किंग डिस्टेंस, व्हाट इज वर्किंग डिस्टेंस इन रेटिनोस्कोप? This is the distance between the patient eye and pupil of retinoscope or examiner. Average working distance is 1 arm, that is 66 centimeter. When you will convert to the meter, this will be 2/3 meter, and in diopter this will be 1.5 diopter. By using formula of focal length, D equal to 1 by F. So 1 meter equal to 1 diopter, half meter equal to 2 diopter, and 2 meter equal to 0.5 diopter, and 2/3 meter equal to 1.5 diopter. जब भी हमें इनको मीटर से डाप्टर में कन्वर्ट करके ही डिडक्ट करना है, क्योंकि हमारा जो पावर है वो डाप्टर में ना कि मीटर में। सो दोनों का बेस हमें इक्वल करना है। रेटिनोस्कोपिक क्रॉस, हाउ टू मेक रेटिनोस्कोपिक क्रॉस? When streak is horizontal, it means you are neutralizing the vertical meridian. So keep the power in vertical meridian. इसका मतलब ये है, जब हमारा स्ट्रिक हॉरिजेंटल है तो हम वर्टिकल मेरिडियन को न्यूट्रलाइजेशन कर रहे हैं। जब हमारा स्ट्रिक वर्टिकल मेरिडियन में तो इसका मतलब हम हॉरिजेंटल मेरिडियन को न्यूट्रलाइजेशन कर रहे हैं। सो पावर ही वर्टिकल का हॉरिजेंटल एंड हॉरिजेंटल का वर्टिकल होना चाहिए। हाउ टू गेट रिफ्रैक्शन नंबर फ्रॉम रेटिनोस्कोपिक क्रॉस? First rule is deduct thus or subtract the working distance from both meridian. And second rule is take the smaller value for sphere. And third rule is difference of both meridian is cylindrical power. For axis, the meridian at which our sphere is situated will be our axis of cylindrical. जैसे कि एग्जाम्पल +2.50 एक मेरिडियन में न्यूट्रलाइजेशन हो रही है और दूसरा +3 से न्यूट्रलाइजेशन हो रही है।
और हमारा वर्किंग डिस्टेंस कितना है 1.50, जो कि मीटर में 2/3 है। इनको कन्वर्ट करने के बाद 1.5 होगी। और दोनों वर्किंग डिस्टेंस एज फर्स्ट रूल दोनों में डिडक्ट करना है, मतलब बोथ मेरिडियन में डिडक्ट करना है। डिडक्ट करने के बाद हमें क्या मिलेगा +1.5 एंड दूसरा मेरिडियन में 1.50। एज सेकेंड रूल टेक द स्मॉलर वैल्यू ऑफ स्फीयर, तो ये दोनों में कंपेयर करना है, सबसे छोटा कौन सा है, सबसे स्मॉल कौन सी है। तो फिर कंपेयर करने के बाद +1 इसमें सबसे स्मॉल है, तो ये हमारा स्फेरिकल नंबर होगा। अब देखना है डिफरेंस ऑफ बोथ मेरिडियन इज सिलिंड्रिकल पावर, मतलब दोनों मेरिडियन का डिफरेंस हमारा क्या होगा सिलिंड्रिकल पावर। सिलिंड्रिकल पावर जब भी रिमेनिंग नंबर से डिफरेंस करना है, ना कि बड़ा या छोटा या कुछ ऐसा कुछ रूल्स इसमें नहीं है। जो सपोज हमने स्पेरिकल पावर ये ले लिए तो हमारा रिमेनिंग पावर ये, तो रिमेनिंग पावर से हमें सब्ट्रैक्ट करना, ना कि +1 से ही इनको सब्ट्रैक्ट करना। इफ हम इस स्पेरिकल ये लेते हैं तो हमें +1 से ही रिमेनिंग पावर +1 से सब्ट्रैक्ट करना है ये। तो फिर इसमें रिमेनिंग पावर कौन सी है, ये है। इसका अभी तक कोई यूज नहीं हुआ है, तो यूज करने के लिए 1.50 - 1 करोगे तो क्या होगा +0.5। अब एक्सिस के लिए जब भी मेरिडियन, मतलब जो स्पेरिकल नंबर जिस मेरिडियन में है उसी का एक्सिस लेना है। इसका मतलब हमारा +1 कौन सी मेरिडियन में, +1 स्पेरिकल कौन सी मेरिडियन में 90 में, मतलब वर्टिकल में है। तो फिर वर्टिकल लाइन वो 90 को डिनोट करता है, तो 90 डिग्री हमारा एक्सिस है। अब ये देखना है हमारा ये रिफ्रैक्शन राइट है कि नहीं। ये जैसे कि हर सब मैथमेटिक्स में आंसर से सॉल्यूशन होता है और सॉल्यूशन से आंसर होता है। फिर चेक करते हैं, चलो हमारे ये नंबर से हमारा ये क्रॉस बन रही कि नहीं, मतलब ये आंसर से हमारा ये क्वेश्चन बन रही है कि नहीं, तो ये क्वेश्चन। तो फिर देखते हैं वर्किंग डिस्टेंस हमारा जितना यहाँ पर हमने माइनस किए हैं उसको हम यहाँ पर प्लस करेंगे। तो 1 + 1.50 कितना हो गया 2.50। स्पेरिकल जब भी एक्सिस को एक्ट करता है तो मीन्स हमारा 2.50 90 में आ गया। और दूसरा क्या हुआ, जो 2.50 यहाँ पर कैलकुलेशन करें उसको यहाँ पर ऐड करना सिलिंड्रिकल में। तो क्या होगा स्पेरिकल को सिलिंड्रिकल में ऐड करने के बाद 2.50 को 0.5 में ऐड करने के बाद हमें क्या मिला 3 दूसरा मेरिडियन में। तो इससे हमें ये पता होता है कि हमारा आंसर राइट है। दूसरा एग्जाम्पल ये है, एक मेरिडियन 1.5 से न्यूट्रलाइजेशन हो रही है और दूसरा -2.5 से। इसका वर्किंग डिस्टेंस 2/3 मीटर, डाप्टर में कन्वर्ट करने के बाद 1.5 डाप्टर होगा। और अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट रूल दोनों को डिडक्ट करना, मतलब वर्किंग डिस्टेंस को डिडक्ट करना है बोथ मेरिडियन में। जब सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें मिलेंगे ये 0 एंड -4। अब देखना है सबसे छोटा कौन सी है, तो 0 0 सबसे छोटा है, इस मीन्स हमारा ये स्पेरिकल हो गया। अब सिलिंड्रिकल फाइंड आउट करने के लिए बोथ डिफरेंस ऑफ बोथ मेरिडियन इज सिलिंड्रिकल पावर। अब दोनों को डिफरेंस करने के बाद -4 यहाँ पर आ गया। -4 जब भी रिमेनिंग नंबर से आपको माइनस करना है। स्पेरिकल हमने ये लिया था, अब रिमेनिंग हमारा ये, इसका वर्क अभी बाकी है। तो इस नंबर से हमें यहाँ पर डिटेक्ट करना है, मतलब रिमेनिंग से डिटेक्ट करना है दूसरा पावर को। इफ हम ये स्पेरिकल लेते तो हम इससे यहाँ पर डिटेक्ट करना। इसमें ये नहीं देखना कि बड़े से छोटा या छोटे को बड़े से करना है, जो रिमेनिंग है उससे हमें डिटेक्ट करना है। अब एक्सिस कौन सी लेनी है, जिस मेरिडियन में हमारा स्पेरिकल पावर है वही होगा हमारा एक्सिस। मतलब हमारा स्पेरिकल पावर कौन सी मेरिडियन में, वर्टिकल मेरिडियन में, तो वो हमारा हो गया 90 डिग्री वर्टिकल मेरिडियन। इफ हमारा स्पेरिकल 180 मेरिडियन में होता, मतलब हॉरिजॉन्टल मेरिडियन में होता, तो हमारा 180 ही एक्सिस होता। तो इसलिए यहाँ पर 90 होगा क्योंकि स्पेरिकल हमारा 90 मतलब वर्टिकल मेरिडियन में। दूसरा एग्जांपल ये है, -0.5 एक मेरिडियन में न्यूट्रलाइजेशन हो रही है और -0.25 एक मेरिडियन में। वर्किंग डिस्टेंस हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद एक में हुआ -1.5 और दूसरा में 1.25। माइनस माइनस प्लस होगा साइन सेम। अब देखना है दोनों में छोटा कौन है, -1.25 छोटा है, सो ये हमारा स्पेरिकल नंबर होगा। दोनों का डिफरेंस हमारा सिलिंड्रिकल नंबर होगा। सो डिफरेंस करने के बाद हमें क्या होगा, मिलेंगे -0.25। एक्सिस कौन सी लेने, जो जिस मेरिडियन में हमारा स्पेरिकल है वही हमारा एक्सिस होगा। सो 1.25 हमारा हॉरिजॉन्टल मेरिडियन में, जो कि ये 180 मेरिडियन है, तो ये हमारा एक्सिस होगा।
Important finding: in high hypermetropia, glow is totally dull, even you will not see the movement. So start the neutralization from +6, and in high myopic -6 and aphakia +10 DS, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्रिस्टलाइन लेंस हमारा एब्सेंट होती है, सो हम +10 से ही स्टार्ट करेंगे। और इफ़ पैसेंट फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा पैसेंट कोई आया है तभी आपको डल ग्लो है और मोमेंट ना दिखे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मोमेंट फाइंड आउट करनी है। सो +6 डाल के आपको थोड़ी सी मूवमेंट दिखेंगी। इफ़ वहाँ +6 से विथ मूवमेंट जा रही है तो हम विथ मूवमेंट जा रहे तो +6 से न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए स्टार्ट करेंगे। इफ़ -6 डालकर हमारे अगेंस्ट में जा रहे हैं तो हम अगेंस्ट -6 से स्टार्ट करेंगे न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए। जब तक ये न्यूट्रलाइजेशन ना हो, सपोज -20 पर जाकर ये न्यूट्रलाइजेशन हो रही, तो हमारा वही होगा न्यूट्रलाइजेशन पावर और न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट। सो फिर इन एस्टिग्मेटिज्म और सिलिंड्रिकल पावर you will see the fine small pupillary reflex along to axis with break-in reflex। मतलब ये जब कोई पेशेंट का सिलिंड्रिकल पावर हो या कोई पेशेंट को सिलिंड्रिकल पावर है तो आपको थिन सी रिफ्लेक्स देखेगी, जो है कि ये थिन सी रिफ्लेक्स पिपलरी रिफ्लेक्स है, वो ये स्ट्रिक रिफ्लेक्स है। इफ सिलिंड्रिकल पावर है तो ये स्ट्रिक रिफ्लेक्स और पिपलरी रिफ्लेक्स ब्रेक सी होगी, मतलब दोनों एक दूसरे से अलाइन नहीं होगा। इफ़ ना एक्सिस दूसरा इफ़ यहाँ पर सपोज स्ट्रिक रिफ्लेक्स हमारा रेटिनो का रिफ्लेक्स 90 में है और एक्सिस इसका यहाँ पर है 90 का मतलब 45 साइड में सपोज, तो हम इसका जो पिपले रिफ्लेक्स होगा वो टिल्सी होगी, मतलब बेंड या ब्रेक होगी। तो हमें रेटिनोस्कोपी स्ट्रिक को भी इसी मूवमेंट में और इसी एक्सिस में लेकर हम रिफ्लेक्शन मतलब न्यूट्रलाइजेशन कर सकते हैं। जब आपका टू मूवमेंट इंडिकेट द सिलिंड्रिकल पावर, इसका मतलब ये है जब कोई पेशेंट का एक मेरिडियन हुई तो और दूसरा मेरिडियन मूवमेंट अगेंस्ट हो, तो इससे भी हमें एक रफ आइडिया मिलता है ताकि ये पेशेंट को सिलिंड्रिकल पावर है। इन केस ऑफ कैटरैक्ट पेशेंट you will see the black spot in the central area और इन द पेरीफेरी। जब ये पेशेंट में जब आपको मूवमेंट ना दिखे तो पेशेंट का हेड और या चिन थोड़ी सी अप करना है, थोड़ी सी ऊपर करने के बाद न्यूट्रलाइजेशन कर सकते हो मूवमेंट को। स्पेशली हमें सेंट्रल कैटरैक्ट, जो कि सेंट्रल कैटरैक्ट होती है, वहाँ पर थोड़ी सी मूवमेंट नहीं दिखती है। मूवमेंट ना दिखने के टाइम में हम ये ऑप्शन अप्लाई करने के बाद आप न्यूट्रलाइजेशन कर सकते हो। जब मूवमेंट आपको पेरीफेरी में दिखे या सेंट्रल में देखो तो उसी साइड में आपको ये पेरीफेरी में देखे तो पेरीफेरी में ही न्यूट्रलाइजेशन करना है। इफ सेंट्रल में दिखता है तो सेंट्रल में ही न्यूट्रलाइजेशन करना है। बट सेंट्रल ट्राई करना है कि ज़्यादा हमें सेंट्रल एरिया में ही न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव एरर हमारा सेंट्रल एरिया में ही होता है इसलिए। और दूसरा पॉइंट क्या है, नोट, ये सबसे ज़्यादा और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। When the movement is not seen, change the retinoslip to the concave mirror to find the movement। मतलब हमारा ये स्ट्रिक रेटिनोस्कोपी है जिसमें दो मिरर होता है, एक प्लेन मिरर एक कॉन्केव मिरर। जब आपको प्लेन मिरर में कोई मूवमेंट ना दिखे तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, ये रेटिनोस्कोपी स्लीव है, इसको ऊपर करने के बाद आपको मूवमेंट दिखेंगे। तो फिर जब मूवमेंट दिखे तो देखो, इफ़ विथ मूवमेंट आपको कॉन्केव मिरर में दिख रहा है तो इसका मतलब हमारा प्लेन मिरर में अगेंस्ट है। इफ अगेंस्ट मूवमेंट दिख रही है तो इसका मतलब प्लेन मिरर में विथ है। तो फिर मूवमेंट हम कॉन्केव मिरर से फाइंड आउट करने के बाद हम प्लेन मिरर में न्यूट्रलाइजेशन ही करेंगे, ना कि कॉन्केव मिरर में। जब भी हम प्लेन मिरर में न्यूट्रलाइजेशन करेंगे पेशेंट को। होप यू लाइक दिस टॉपिक। प्लीज कॉमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज and give the feedback through the comment. Thank you everyone to view this session.